ऐसे क्या चीज़ें हैं जो विमेन मोस्टली इग्नोर करती हैं रिलेटेड टू देयर हेल्थ? Right from the adolescence, when the child is growing up, when she starts having her periods or her puberty spurt, is the right time to encourage them to start exercising. I know we are in the era of Swiggy and Zomato. हमें try करना चाहिए कि हम उसको limit करें. Every alternate day having is not good. Processed foods are not good. विमेन को कितनी बार गायनोकोलॉजिकल चेकअप करवाना चाहिए? And especially after the age of 35, we always recommend a 6 monthly checkup, especially for taking a pap smear, to do a mammography to check on your breast. If you are bleeding heavily for a very long time, again that's an indication there's some hormonal issue. कल्याणी, क्या स्ट्रेस सच में मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है, एंड इफ यस हाउ? लोगों को लगता है कि आई एम जस्ट 25, हो जाएगा, प्रेगनेंसी कभी ना कभी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं रहा है. पीसीओएस की हम बात कर रहे हैं, तो पीसीओएस के बिगेस्ट रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? डज बर्थ कंट्रोल हैव लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स? सिमिलरली मेनोपॉज इज द सेम थिंग. जो आपके साथ में तब हुआ हार्मोनल चेंजेस, अब आपके साथ वही हार्मोन्स जो है वो गेम खेल रहे हैं कि वो अब वो फिनिश हो रहे हैं, दे आर एट देयर एंड. आईवीएफ का सक्सेस रेट कितना होता है? IVF is normal, please understand. It's just the assistance. वो आप ही का बेबी है, वो it is just that 5 days that we are taking care of that baby to help you conceive in a faster way करके. Hello everyone. So let me introduce our today's special guest, Dr. Kalyani Shrimali. Dr. Kalyani Shrimali is DNB, MRM, DRM, FICOG, Clinical Director and Senior Consultant, Reproductive Medicine, Nova IVF Indore, Ujjain and Ratlam. Welcome to the show, Dr. Kalyani. Thank you so much, Komal, for having me here today. And special thanks to you for pushing me to come here. Otherwise, I would have never been here and, got the special moment to have conversations with you and out to the world. Thank you so much. It's like my pleasure. So, Kalyani, if you can tell me something about your journey being a doctor. So I was just listening to Komal mentioning about all my degrees out here, and even I was getting awestruck, or I was getting confused कि ये क्या है, And I was wondering, मैंने कहा कल्याणी मैं without phone में देखे हुए ये नहीं बोल पाऊंगी because you are. So let me just let you bring through the entire journey about how it is. So to start with, I'm a fertility consultant or an IVF specialist to call up. When we start our journey, basically we all know doctors कैसे बनते हैं, so we have to prepare in our 10th, 11th, 12th, give exams. MBBS हुआ, MBBS के बाद we select our branch. So I took up the branch of gynac because my mom also is a gynecologist, so it inspired me to take up the gynac. Okay. Gynac करने के बाद, that is completing my DNB MS after 3 years. That is the time when I got inspired in my final year that I don't want to be like a regular gynac. I don't want to be someone who is just treating the gynac or just delivering the babies karke. I want to be someone to bring that baby into the world. There are so many couples out there who cannot conceive or who have got difficulty in conceiving, and there's so much of tricky small hormonal changes in the body which is not letting them conceive. And that is what attracted me in my final year, that I want to come out and I want to learn this field. And of course, so that was not the end. When I decided I want to pursue like a super specialty, I want to take one more branch ahead of the gynac. I started figuring out how should I become an infertility consultant, and that's where all those other degrees come in. Yes. I did my master's in reproductive medicine. I did my diploma in reproductive medicine from London and Germany. So you went London for the... Yes, and I even did my fellowship in reproductive medicine from Mumbai. Yes. So even after finishing my MS, I had to do at least 2 to 3 years of more studying in the field of the infertility, and then of course practice it. And that is how, after almost a journey of 11 years, I could start my practice. So yes, so those degrees are all for that. And that is how now I specialize myself, rather than just being a gynecologist, I specialize myself in treating the couples who have got a problem in getting pregnant. काफ़ी beautiful, inspiring journey रही है कल्याणी, and I'm glad you have chosen this career. Yeah, thank you so much. And even I'm glad. Since now we are talking about women health, especially, and since I run a community of mothers with over like 47,000 mothers at present, so I think we should start with women health only. Yes. तो कल्याणी, मेरा पहला क्वेश्चन होगा,
विमेन हेल्थ से रिलेटेड कि ऐसे क्या चीज़ें हैं जो विमेन मोस्टली इग्नोर करती हैं रिलेटेड टू देयर हेल्थ. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, कल्याणी, ऐसे क्या कॉमन हेल्थ इश्यूज़ हैं जो नॉर्मली विमेन इग्नोर करती हैं और उन्हें नहीं करना चाहिए? सो आई थिंक आपके क्वेश्चन में ही आंसर है कि हम हमेशा अपने आप को इग्नोर करते ही करते हैं. आई थिंक देयर इज़ नो एज लिमिट टू इट. मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम 20 के थे तब हमने इग्नोर किया या हम 30 के थे तब हमने इग्नोर किया. आई थिंक वी इन जनरल हैज़ फीमेल्स हमने हमेशा अपने आप को इग्नोर किया है. जब हम छोटे थे तब भी हमने इग्नोर किया है. वी ऑलवेज थॉट कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. एंड घर में भी सबको ये लगता है कि पढ़ाई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड प्रॉबली मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो मैं देखती हूँ कि दे इग्नोर गोइंग इनटू दैट स्पोर्ट्स. दे इग्नोर के कि हम अपनी खेलने कूदने की जो टाइम है करके वो हम क्लासेस में निकाल रहे हैं, हम पढ़ने में निकाल रहे हैं. सो राइट स्टार्टिंग फ्रॉम जो हम 12 या 13 साल के थे तब से हम अपने आप को इग्नोर ही कर रहे Yes, हैं. I think when it comes to especially to girls, Yes. they never opt even sports Yes. as their. हम हमेशा देखते हैं हमारे बेटे होंगे ना, वो हमेशा स्पोर्ट्स हाँ, के लिए हम play के हमेशा लिए बोलेंगे जा जाएंगे. नीचे जाओ, हाँ. क्रिकेट खेल ले, बॉल पकड़ ले, बास्केटबॉल नहीं खेल नहीं, ले. बेटे को बोलना नहीं पड़ता है कि नीचे जा, उसको बोलना पड़ता है ऊपर आ जा. करेक्ट. But not with the females, not और with हम the girls. फीमेल्स और आज से अगर लेट्स से 20-25 ईयर्स की बात करें करके तो हम हमेशा लड़कियों को जब 7th-8th में आ जाती थी, चलो आ जाओ किचन में ये सीख लो, रोटी बना लो, ये कर लो, वो कर लो करके. सो आई थिंक ट्रेडिशनली वी हैव ऑल बीन ट्रेन्ड कि लड़कों का काम फील्ड में है, लड़कियों का काम जो है या पढ़ो या तो फिर घर पे ही रहो करके. सो यू ऑफ कोर्स थिंग्स आर चेंजिंग, द ट्रेंड्स आर चेंजिंग. बट आई थिंक राइट फ्रॉम दैट टाइम हमने अपने आप को इग्नोर किया है. एंड बिकॉज हम अर्ली एज से ही रेडी नहीं हुए हैं टू एक्सरसाइज आवर सेल्फ. एंड दैट इज़ वन ऑफ द I think that the weakest point what we have in female is lack of exercise. हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम करेक्ट खाना नहीं खाते हैं, हमें हमेशा अच्छा खाने की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें हमारे घर वालों को भी वैसे ही अच्छा खाना बना के देना है करके. सो आई थिंक राइट स्टार्टिंग फ्रॉम एडोलेसेंस, जब लड़कियां बड़ी होनी स्टार्ट होती है, व्हेन दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग, या फिर जब वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है या फिर हम मेनोपॉजल एज ग्रुप में आते हैं, हमारे लिए सारे इग्नोरिंग फैक्टर्स होते हैं जो हम कभी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते. Yes. हमसे बात करते हैं बट वी नेवर इम्प्लीमेंटेड. सो आई थिंक राइट फ्रॉम जिनके बच्चे होने वाले हैं या हो गए हैं, आई थिंक राइट फ्रॉम द एडोलेसेंस व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, व्हेन शी स्टार्ट्स हैविंग हर periods or her puberty spurt is the right time to encourage them to start exercising. One, क्योंकि आप जितना एक्सरसाइज करोगे आपकी बॉडी की बोन ग्रोथ होती है, आपके बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं. थर्ड इज़ कि इफ़ यू एक्सरसाइज इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, विटामिन डी विच इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन योर बॉडी, विटामिन डी, वो आपका इग्नोर नहीं होगा. एंड दैट इज़ वन. विटामिन डी इन फैक्ट इट हैज़ गॉट सच अ बिग रोल. हमें से भी लगता है विटामिन डी से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है, हमारा बोन अच्छा बनेगा. नहीं, विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट for your mental stability as well. If your vitamin D is on the lesser side, आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाओगे या बहुत जल्दी आप एंजाइटी में जाओगे. So yes, vitamin D, calcium, exercising, your muscle loss, ये सारी चीज़ें important है when you are started to grow. Growing time में ये सब चीज़ें necessary Yes, that है. is the reason I think हमारे elderly people, they used to say, even if you don't do exercise, at least when you wake up early in the morning, go and sit. Yeah, look at Sunlight the में sun. जाके आप pray 5-10 करो sun minutes, को. just Yeah, sit there. yeah, Look at the exactly. plants and sit Exactly, there. Do exactly. nothing, but at least be there. Yes. I think that is the reason somewhere कि आपका absorption वैसे भी होता है विटामिन. सो दैट इज़ जब हम एडोलेसेंस की बात करते हैं, व्हेन अब हम ग्रो हो गए, वी हैव कम टू द रिप्रोडक्टिव एज, कि जहाँ पे इट इज़ द टाइम व्हेन यू हैव गॉट मैरिड, नाउ यू आर प्लानिंग फॉर योर प्रेगनेंसी, व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर योर बेबी. आई थिंक द मोस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट टाइम इज़ अगेन योर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस. हम जो इग्नोर करते हैं दैट इज़ हमें बहुत सारा काम करना होता है, हम हमारे दिन को डिवाइड नहीं करते हैं, हम हमारे टाइम को मैनेज नहीं करते हैं. गुड स्लीप इज़ सो इम्पॉर्टेंट. अगर हमने 7 या 8 घंटे अच्छे से नहीं निकाले हैं करके, आप स्लीप डिप्राइव्ड होगे, आपका कहीं ना कहीं पे जो है माइंड वर्क नहीं करेगा, कहीं ना कहीं पे आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो जो है वो इनहिबिट होता है. In fact, sleeping is so important. It releases a hormone known as melatonin, which is so important for the growth of your egg. जो आपकी बॉडी में जो एग्स बनते हैं या जिसको हम रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बोलते हैं, मेलाटोनिन इज़ वन ऑफ द प्रिकर्सर्स जो आपके अच्छे हार्मोन्स बनाता है बॉडी में. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वी एडवाइस जब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए बोलते हैं, वन ऑफ इट इज़ टू हैव गुड इनफ स्लीप. सो इवन स्मॉल थिंग्स लाइक जस्ट अच्छे से सोना, गुड हेल्दी फूड, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम इनटेक,
आपका green leafy vegetables, we should not be ignoring all this. Okay. I know we are in the era of Swiggy and Zomato, but we should be हमें try करना चाहिए कि हम उसको limit करें. Every alternate day having is not good. Processed foods are not good. हमने इतना सब सुना है उसके बारे में. It leads to early diabetes, early hypertension, so many things. Yes. So yes, let's not ignore And I've ourselves. seen females started very late and they realize it जब या तो आपको शुगर हो चुकी है या आपको Correct. ब्लड प्रेशर की इशू आ गए, then they Correct. realize कि अभी now we have to start working out. Correct. So they are doing it in their late 40s or late 50s. So I think this is not gonna help in long run. Then. Yes, but of course then like you say कि it's never too late. आपको never जब too realize हो आपने You करना start. चाहिए करके. And especially चलो आपने adolescence में नहीं किया, आपने reproductive age group में नहीं किया. I think when you hit that 35 or 40 years, it's very important to do something known as strength training. आपका जो weight, it's not कि आपको जाके 20 kgs उठाना है या कुछ, but it is just simple, even 2 kgs or 5 kgs dumbbell strength training is important because with time, with every year passing, you are losing your muscle. And अगर आपने अपना muscle gain नहीं किया, you will be left only with your fat or you know the lean muscles which are there, which will ultimately lead to your bad health, bad bones and everything. So इसलिए after the age of 40 now everyone is recommending कि आपको strength training करनी चाहिए करके. And it's not necessary कि आपको हर रोज करनी है, even 2 or 3 times in a week is okay. And कुछ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 45 minutes of any type of exercise. I always tell my patient, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जिम चले जाओ या आप डाइट पे चले जाओ. 45 minutes का मतलब है, इफ़ यू लाइक डांसिंग प्लीज़ पुट ऑन म्यूजिक, डांस करो. If you like walking, please go out walk. If you like yoga, just do certain yoga exercise. It's And just, I think you can keep changing because yeah, when I conceived उसके बाद जब जॉय हुआ था तो mine was C-section. So काफ़ी टाइम तक तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, but after like जब वो 4-5 months का हो गया था, I got back to exercise. but तब ये नहीं हुआ कि मैंने जिमिंग Yes. स्टार्ट कर दी. I was doing yoga at home. मैं वो शिल्पा शेट्टी का एक योगा का सीडी आता था, I brought that और वो मैं देख के मैं काफ़ी योगा करती थी. मतलब वहाँ ये था कि जॉय आसपास ही होता था. फिर थोड़े टाइम बाद ग्रेजुअली जब मेरी बॉडी मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर रही है प्रॉपरली, देन एक बिपाशा बसु की सीडी आती थी, उसका एक कोर वर्कआउट आता था, बेसिक एंड देन एडवांस्ड. आई यूज टू डू दैट कल्याणी. सो दैट मुझे ना बहुत हेल्प मिला टू मेंटेन माई वेट, क्योंकि मैंने आई थिंक दैट टाइम अराउंड 30 किलो मैंने वजन बढ़ा लिया था आफ्टर जॉय. But yeah, I think because of the lifestyle and the lifestyle management and because of the workout, I could manage somehow. And that makes you feel so happy. यानी Yes. आपने आज कुछ एक वर्कआउट किया, आपने कुछ किया, even that half a kg आपके weighing machine पे कम होना, it is like your achievement of that day कि I have earned that medal. And of course आप जितना खुश रहोगे, your family is happy, you are happy. So it does make a lot of difference when you exercise, when you eat healthy. Thank you, Kalyani. Kalyani, I have one question related to the again women को कितनी बार gynecological checkup करवाना चाहिए? So again, I normally always divide the females. अगर जैसे कोई 15-16 year old लड़की है करके, if you have the problems of irregular periods, you should be in check with your gynec कि क्यों हो रहा है करके. And nowadays we are recommending कि 15-16 पे आप gynec से इसलिए भी check करिए because there is something known as a cervical vaccine जो आपको लेना चाहिए. Okay. So इसलिए we recommend कि once your girl is around 15-16, you should go for a routine checkup with your gynec just Once to in a understand. month? Yeah, once in a month or once in 6 months or once in if there's nothing, कोई problem Okay. नहीं है, then it's once in a year, that's enough करके. That's enough. But if it's an irregular period, the gynec will keep on asking you to come back after 3 months to check on you how things are करके for your hormonal acid. अगर आप 20s and 40s के बीच में हो, it is recommended at least once in a quarter to go and visit करके. For the simple being कि how your internal organs are working, to check on it. And especially after the age of 35, we always recommend a 6 monthly checkup, especially for taking a pap smear, to do a mammography to check on your breast, to check और कोई आपको कोई vaginal discharge है, ऐसे तो कोई problem नहीं है. And around 40 के बाद every person, वो female हो या male हो, they should get once in a year checkup, full body checkup, including ultrasound of your uterus, your ovaries, your pap smear, your densitometry for your bones. Everything should be done once in a year. So yes, if you don't have any symptoms, once in a year is good to do your entire profiling. और अगर वो भी सब कुछ ठीक है, then maybe after a year again you can reschedule this thing. But अगर उसमें कोई problem है, तो according to the treatment given and your gynec may give you a guideline कि आपको कब वापस आना है करके. But yes, once in a year, very important to go back for your pap smear and for your mammography. Okay.
कल्याणी, हार्मोनल इम्बैलेंस के अर्ली साइंस क्या होते हैं? So when we speak about hormonal imbalance, there are 3-4 hormones which are important in female's body. One is your thyroid levels, second is your prolactin level, third is your follicular stimulating, or we call it as FSH. Usually the body has got the role in interplaying. ये 3-4 organs ही आपस में जो है खेलते रहते हैं. So अगर आपको लग रहा है कि आपके periods थोड़े भी irregular हो रहे हैं, so फर्स्ट साइन जो यूजुअली आती है वो पीरियड्स की ही आती है कि लेट्स से आपके साइकिल्स एकदम रेगुलर थे, 30 डेज में आ रहे थे, बट लास्ट 2-3 महीने से आपको लग रहा है कि नहीं, 2 दिन ऊपर जा रहे हैं, 4 डेज ऊपर जा रहे हैं या जल्दी आ रहे हैं, दैट्स योर नंबर 1 साइन के प्रॉब्ली समथिंग इज रॉन्ग इन योर बॉडी, यू नीड ए चेकअप. Second is your flow of your periods as well. Okay, if it is 2 days, 3 days, 4 days, if it is getting reduced, then you need to go. If you are bleeding heavily for a very long time, again that's an indication there's some hormonal issue. Sudden gain in your weight, again is an indication that there's some hormonal issue, especially thyroid. If you are facing lot of acne, pimples एकदम suddenly आने start हो गए हैं, you are feeling too much of weakness, that is also one of the sign that you need to go. Because जब आपको heavy bleeding होती है, it is one of the reason आपका hemoglobin बहुत कम हो जाता है, and you may suffer from anemia, and उसकी वजह से आपको बहुत tiredness, weakness और ये सारी चीज़ें feel हो सकती है. So usually these are the signs where you need to go and visit your gynec and understand. ओके ओके. कल्याणी, क्या स्ट्रेस सच में मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है, एंड इफ यस हाउ? Yes, so stress do affect. I won't say 100% करता है, but yes, in certain patients it may affect 40 to 50%. Again, आपकी body type पे depend करता है. If you are a very शांत इंसान, तो थोड़ा सा भी स्ट्रेस जो है वो आपको वो कर देगा, परेशान कर देगा आपकी बॉडी के अंदर. देयर विल बी हार्मोनल डिसबैलेंस व्हिच इज हैपनिंग. बट इफ़ यू आर ऑलरेडी एन एक्टिव पर्सन, अ वेरी कि हाँ मैं सब कुछ कर लूँगी करके, मे बी द स्ट्रेस में नॉट अफेक्ट यू सो मच. बट येस, स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं पे हमारा ब्लड फ्लो ऑल्टर होता है. देर आर सर्टन स्ट्रेस हॉर्मोन्स प्रोलैक्टिन करके, जिसकी वजह से जो है हमारे बॉडी में इफेक्ट आता है, एंड दैट इज़ अगेन द साइन के कहीं पे आपके इरेगुलर पीरियड्स होना, योर वेट गेन होना. किसी भी एज को हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है. बिकॉज वी कैन सी अभी छोटी जो लड़कियां हैं, यंग यूथ में, टीनेजर्स, गर्ल्स में भी ये चीज़ें हो रही है. इट कैन. देयर वाज अ टाइम व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल लोगों के बड़े ही रेगुलर होते थे, बट आज के टाइम में आप देखो तो बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल अब बहुत सारी लड़कियों के अंदर पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आना, एग्स कम हो जाना, थायराइड डिसऑर्डर्स होना, तो ये बेसिकली इट इज़ अ विशियस सर्कल. अगर आपने एक पॉइंट पे इसको स्टॉप नहीं किया, वही चलता रहेगा. आपने थायराइड बैलेंस नहीं किया तो वापस आपका वेट बढ़ता जाएगा. वेट बढ़ने की वजह से जो है आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा. सो इट इज़ अ विशियस साइकिल. आप पढ़ रहे हो, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, आप वेट बढ़ाए जा रहे हो, तो वापस हार्मोनल, एंड सो इट्स लाइक ए विशियस सर्कल. यू विल जस्ट कीप ऑन मूविंग. इसलिए मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, हाउ टू डिवाइड इट, कैसे करना है, टेकिंग आउट दैट 40 minutes 1 hour फॉर योर सेल्फ, आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट इन 24 hours टाइम पीरियड. कल्याणी, विमेन्स की हेल्थ से रिलेटेड ऐसा कौन सा मिथ है जो तोड़ा जाना चाहिए? सो फीमेल्स को ये लगता है, आई थिंक एज इज़ समथिंग. फीमेल्स को लगता है कि कि मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, या मैं तो अभी तो मैं young जवान हूँ. हाँ, कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ. आई थिंक नो, age is not a number anymore. If you're focusing on your career, or if you're focusing on your marriage, or if you're focusing on getting pregnant, I think age should not be the number. You should try to, how would I say, you should try to focus on your own fertility health as well. Because मैं fertility में हूँ, so for me to bust that myth is very important. लोगों को लगता है कि आई एम जस्ट 25, हो जाएगा प्रेगनेंसी, कभी ना कभी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं रहा है. जो हमारी पहले धारणा थी कि 40 के बाद ही प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसा नहीं रहा है. वी आर सेइंग यंगर एज ग्रुप में भी फर्टिलिटी राइजिंग, स्पेशली लड़कों के अंदर भी. सो एज इज़ नॉट दी नंबर नाउ. आई थिंक इट्स अ मिथ कि आप जितने यंगर हो, आप उतना जल्दी कंसीव कर सकते हो. आई थिंक वॉट यू नीड टू फोकस इज, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए नहीं प्लान कर रहे हो, यू शुड बी डूइंग सर्टन फर्टिलिटी असेसमेंट. If not, you should be consulting the gynec, you should be freezing your eggs and taking it forward करके कि कैसे करना है. So I think age number 1 is a myth. I think कोई भी एज ग्रुप में आपको जो है कोई भी डिफ़िकल्टी आ सकती है.
आपको फाइब्रॉइड ऐसा नहीं है कि 40 की ईयर्स में ही होगा, आपको जल्दी भी हो सकता है। है। आपको इरेगुलर पीरियड ज़रूरी नहीं है कि 50 की एज में ही होगा, वो जल्दी हो सकता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मेनोपॉज भी जो है 50 में होगा करके। वी आर सीइंग गर्ल्स विद 24-25 ईयर्स ओल्ड गोइंग इनटू मेनोपॉज। हाँ या इट्स समथिंग नोन एज प्री मैच्योर मेनोपॉज, हाँ कि कहीं ना कहीं पे बिफोर द टाइम द ओवरीज हैव स्टॉप फंक्शनिंग एंड वो जो है मेनोपॉज। सो वॉट आई वुड सजेस्ट इज एज इज़ नॉट ए नंबर। ये मत सोचो मेरे पास बहुत टाइम है करके। इफ़ यू हैव डिसाइडेड ऑन समथिंग यू शुड गेट योर सेल्फ इवेल्युएटेड। एंड आई थिंक इसलिए दैट वंस इन अ ईयर और वंस इन 6 months अ चेकअप विद द गायनेक इज मस्ट टू अंडरस्टैंड यू नो हाउ थिंग्स आर गोइंग करके। ओके। पीरियड पेन्स को नेचुरली कैसे मैनेज कर सकते हैं? बिकॉज आई हैव बीन सीइंग देयर सो मैनी गर्ल्स एंड इवन फीमेल्स, दे यू नो गेट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन वाइल देयर मेंसेस। राइट। सो देर आर नो फुल प्रूफ मेथड कि आप नेचुरली उसको कंट्रोल कर सकते हो, बट येस अगर आपको पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं दैट इज़ नॉट नॉर्मल फर्स्ट ऑफ ऑल। कई बार जो है घरों में बोला जाता है कि अरे पीरियड में पेन हो रहा है, ये तो नॉर्मल है, सबको ही होता है करके। सो इट इज़ नॉट। इफ़ द गर्ल इज सफरिंग, यानी अगर उसको टैबलेट्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है, उसकी डे टू डे एक्टिविटी अगर उससे डिस्टर्ब हो रही है, then that is something of a concern. You need to go back to your gynec and you know check on it. So first is we need to understand कि is it just the normal menstrual cycle का जो पेन हो रहा है वही हो रहा है, or is there something else? Because dysmenorrhea बोलते हैं हम उसको हमारे टर्म्स में, मेडिकल टर्म में. So जो ये dysmenorrhea होता है they are categorized into mild, moderate, severe. Okay, mild is where you are okay, ठीक है, you realize today is your day one, okay I will be okay by evening करके, and you just ignore and you just keep on working जो भी आपका काम है करके. Moderate is somewhere आपने tablets ले ली, आप ठीक हो गए करके, and you are back to your work. Severe is something जहाँ पे we even had cases जहाँ पे when the girl starts menstruating वो they can't even stand up, they fell down, यानी कि वो बेहोश हो जाते हैं. Sometimes we have to admit them, give them injectables to you know relieve that pain. सो मॉडरेट टू सिवियर पेन अगर जब है आपको कि वेर यू फील कि यू नो आपके एक्टिविटीज़ आर नॉट, आप नहीं कर पा रहे हो करके, देयर इज समथिंग नोन एज एंडोमेट्रोसिस. एंडोमेट्रोसिस जहाँ पे आपकी यूट्रस की जो लेयर होती है वो आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के पास चली जाती है, जैसे ओवरी के पास या पेल्विक रीजन में, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि वहाँ पे ना चीज़ें चिपक जाती है. सो वी कॉल इट एज एडिशंस, कि वो एक दूसरे के साथ स्टक हो जाती है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि उनको पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन होता है. एंड दोज आर द पेशेंट्स वेयर समटाइम्स वी हैव टू give them certain medications for a long time to control the pain. There are certain injectables जो हम देते हैं hormones को balance करने के लिए, and sometime if needed, like let's say अगर शादी हो गई है ना, sometimes if it is needed we even do laparoscopy to you know burn those spots and give them that relief. Okay. So yes, pain in periods is not okay. डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द पेन आपको जो है उसको ट्रीट करना है. सो लेट्स से आपने जैसे नेचुरल फॉर्म्स बोला, देयर नेचुरली वैसा कुछ है नहीं कि वेर वी से कि यू नो इफ़ यू डू दिस प्रॉबेबली यू विल हैव बेटर आउटकम. बट येस देर आर स्टडीज़ जहाँ पे बोला है कि जब आपको पीरियड्स आने वाले हैं, मे बी फूड विच आर लेस इन ईस्ट्रोजन जब आप लेते हो, जैसे सोया हो गया या फिर हमारा क्या कहते हैं पीस हो गए हैं, देर आर सर्टन फूड्स विच आर यू नो मोर इन द ईस्ट्रोजन लेवल, वो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो. बिकॉज ईस्ट्रोजन इज़ दी हार्मोन जहाँ पे कई बार आपको वो पेन हो सकता है इफ इट्स ऑन द हायर साइड ड्यूरिंग योर पीरियड्स, तो वो आप कर सकते हो. देर आर सर्टन योगा एक्सरसाइजेज विच हैव कम अप, मलास्मा बोलते हैं, आई थिंक मलासना करके जो है, दैट यू कैन डू फॉर योर पेन रिलीफ. एंड ऑफ कोर्स मेडिकेशंस आर ऑलवेज अवेलेबल, बट पहले डायग्नोसिस करना ज़रूरी है कि इज इट जस्ट अ नॉर्मल पेन, या बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको एक एज तक पीरियड पेन नहीं होता है और आफ्टर सर्टन क्रॉसिंग सर्टन एज यू स्टार्ट गेटिंग दैट पेन. तो आई थिंक देन इट्स नॉर्मल. Yes. You can have some remedies at home and you can. Yes. So normally the most of the time what works is hot water bag. Yeah. Okay, you know it gives that relief of sensation of the relief. If that doesn't work, there are certain medications which are safe to take, that you can take, and if it is not controllable then of course you have to go for the injectables. But making a diagnosis why there is a pain is important, so that you are ruling out other कुछ कोई serious factors तो नहीं है करके. Okay. मेरा एक स्मॉल क्वेश्चन है आपसे. PCOS की हम बात कर रहे हैं, तो PCOS के बिगेस्ट रेड फ्लैग्स क्या होते हैं?
सो PCOS के जो बिगेस्ट रेड फ्लैग्स होते हैं, वन फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज योर इरेगुलर पीरियड्स. इफ यू आर नॉट गेटिंग पीरियड्स फॉर 40 days, 50 days, 70 days, दैट इज़ नॉट नॉर्मल. कई बार फीमेल्स होते हैं जिनको 2-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, या फिर सिर्फ कई बार मेडिकेशंस लेने पे आते हैं करके. दैट इज़ योर फर्स्ट साइन कि प्रॉब्ली यू में हैव PCOD. योर वेट, देर आर सर्टन फीमेल्स जो दे आर ऑन अ वेरी हायर साइड ऑफ द BMI, 80 kgs, 90 kgs. वो बेचारे एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट भी करते हैं, फिर भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा है करके. सो दैट इज़ द सेकेंड. थर्ड इज़ योर कॉस्मेटिक चेंजेस इन योर बॉडी, एक्नेस. देयर समथिंग नोन एज हिर्सुटिज्म, दैट इज़ हेयर ग्रोथ. कई बार हमारे यहाँ पे हेयर ग्रोथ आ जाती है, यहाँ चिन पे हेयर ग्रोथ आ जाती है, सम बियर्ड लाइक फील वो आ जाती है. दूसरा दी अदर हार्मोनल डिसबैलेंसेस कॉज्ड बाय PCOD. फोर्थ इज़ जब आप थोड़े से एज ग्रुप में ज़्यादा हायर साइड पे आते हो, लेट्स से बाय 35 और 40, यू मे स्टार्ट फेसिंग हेयर फॉल. आपको सो फीमेल्स में आपने देखा होगा, कभी हमारा पूरा एलोपेशिया नहीं होता है, यानी हम कभी भी पूरे टकलू नहीं होते अनलेस हम जाके उसको शेव करते हैं. बट देर इज़ अ सबसेट ऑफ फीमेल्स जहाँ पे आपका बॉल्डनेस होता है ओनली फ्रॉम द फ्रंट एरिया, द फ्रंटल. दैट इज़ अगेन वन ऑफ द साइन कि आपको PCOD हो सकता है. एंड उसके अलावा या सो मोस्टली ये, एंड PCOD के साथ में यू मे हैव थायराइड इश्यूज ऑल्सो. सो PCOD, थायराइड ऑल्सो गो हैंड इन हैंड. Okay. So this could be some of the problems when the red flags do detect कि maybe you have PCOD. Okay. Okay. But usually cosmetically हमें पता चल जाता है, the acne, darkening of the skin, hirsutism, obese कई बार होना. So those are कि probably this person will be having PCOD Okay. करके. Okay. Yeah. My another question to you is, does birth control have long-term side effects? So normally no. Nowadays we have a lot of safer and very low dose birth control pills. So I have at least not seen in my career where we have seen any problem. And in fact multiple studies have come in, even if you take it for back to back for 3 years or 4 years, we have not seen any problem. Okay. But yes, after 2 to 3 years you should again get yourself. So whenever you're taking any hormonal pill, the advice is to get yourself checked at least every year to see how your hormones are behaving. Okay. If certain pills may have not changed your body. So if you're continuously under monitoring and taking it, should not be problem. Okay. कल्याणी, मेनोपॉज का विमेन की ओवरऑल हेल्थ पे और ओवरऑल बीइंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? So menopause is a very big transition in any female's life. आप समझिए जब आप 10-11 years के थे, आप बहुत हैप्पी, आप बहुत एक्टिव और वो थे, पर सडनली एक दिन यू स्टार्टेड हैविंग योर पीरियड्स, आपकी प्यूबर्टी आई. तो स्टार्टिंग के 1-2 साल कैसे आप इरिटेट होते हो. Yes. आपके हम बच्चों को बोलते हैं अरे टीनेज स्टार्ट हो गया है करके, यू नीड अ लिटिल टाइम टू एडजस्ट करके. सिमिलरली मेनोपॉज इज द सेम थिंग. जो आपके साथ में तब हुआ हार्मोनल चेंजेस, अब आपके साथ वही हार्मोन्स जो है वो गेम खेल रहे हैं कि वो अब वो फिनिश हो रहे हैं, दे आर एट देयर एंड. सो उन्होंने जो आपको जो इतने अच्छे ईयर्स दिए विथ गुड हेल्थ, गुड स्किन, गुड हेयर, good what do you say, happiness and lot of things which is dependent upon female's hormone, now those are going into transition and now they are falling. So of course imagine you have something in your hand, you have a candy in your hand और वो आपकी finish हो गई है करके, तो you feel bad, right, कि मेरी ख़त्म हो गई, should I get the next one. But menopause is something जहाँ पे आपके eggs जब finish हो जाते हैं, when your hormones are going down, हम वो candy वापस नहीं लेके आ सकते हैं. The only way is to replenish them by giving the hormones from outside. So transition जब होता है ये वाला, it is difficult for some and it can be very Rewarding for others. not rewarding but very peaceful transition Peaceful, for the yeah. others. Yeah. Some people may have lot of period का issues. Yeah. हर 10 days, हर 15 days, बहुत सारा heavy bleeding होना. Some may not have anything, 2-3 महीने तक नहीं आ रहे, but they are okay with it. Yeah. And some may just have कि ठीक है चलो अब मेरा आ ही गया है करके, in the next 1 or 2 years it will get over करके, and then they go into the menopause. So one is this period irregularity जो है वो किसी के, and especially if you are working, Yes. तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम कर देता है. You don't know कि मैं क्या कैरी करूँ और क्या नहीं कैरी करूँ, मैं क्या ड्रेस पहनूँ, क्या ड्रेस नहीं पहनूँ करके. So yes, that is one of the factors. Second is बिकॉज आपका कहीं ना कहीं पे हार्मोन्स कम हो रहे हैं करके आपके अंदर एक इरिटेबिलिटी भी आनी स्टार्ट हो जाती है. आप कई बार चिड़चिड़े भी हो जाते हो बिकॉज योर हार्मोन्स आर नॉट वर्किंग द वे यू वांट. एंड इफ इट गोज टू द सीवियर पार्ट, समटाइम्स देयर समथिंग नोन एज हॉट फ्लैशेस, कि आप AC में बैठे हो, लोगों को ठंड लग रही है पर आपको गर्मी लग रही है. सो देयर इज लॉट ऑफ मियाँ बीवी के बाद मियाँ बीवी के साथ में झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक को AC चाहिए, एक को AC नहीं चाहिए करके.
सो लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल हर घर की थिंग्स, कहानी। हर घर की कहानी। सो उसकी वजह से जो है घर में थोड़ा सा ये हो जाता है, एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि ना मम्मी तो पूरे टाइम चिढ़ती रहती है, क्या पूछने की ज़रूरत है करके, पूछेंगे तो मना ही कर देंगे करके, या फिर चिढ़ ही जाएंगे करके। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू रिस्पेक्ट Yes, फीमेल्स बॉडी yes. कि ये नेचर का चेंज है। वो फीमेल नहीं चाह रही है कि वो ऐसे बिहेव करे करके, बट ये एक नेचर का चेंज है करके। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज योर ईस्ट्रोजन इज गोइंग डाउन, कहीं ना कहीं पे आपके बोन में वीकनेस आ रही है, दैट इज द रीजन आई सेड फॉर द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो कहीं पे भी छोटा सा आप गिर जाओगे या कुछ हो जाएगा, आपको तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा। सो टेकिंग गुड कैल्शियम सप्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द एज ऑफ 35। एंड द लास्ट इज टेकिंग केयर ऑफ योर हार्ट। यू आर फीमेल्स आर प्रोटेक्टेड विद दिस ईस्ट्रोजन फॉर योर हार्ट प्रॉब्लम्स। इसलिए हम लोग हार्ट अटैक्स इन द फीमेल्स सुनते नहीं है। यूजुअली व्हेन वी हियर द हार्ट अटैक्स इट्स यूजुअली इन द मेल्स बिकॉज योर ईस्ट्रोजन हार्मोन इज कार्डियो प्रोटेक्टिव टू यू, बट जब वो नीचे चला जाता है इट इज़ नॉट सो मच प्रोटेक्टिंग यू। So that is the time when you need to start taking care of your health, especially for your cardiac, and that is where all your supplements, और जब हम बोलते हैं कई बार कि आप hormonal therapies ले लो करके, ये important रहते हैं करके। Okay. So yes, transition is difficult for some and it can be peaceful for some, but we need to respect a female's body. घर वालों को समझना चाहिए there must be something which I is wanted going. to say this. I wanted to say the same thing that it should be acknowledged. Yes, it should Because be respected, yeah, acknowledged. we see at home, even if we talk about menopause, even if we talk about period mood swings, लोग बोलते हैं अरे इसका तो हर महीने का हाँ, है, हाँ. इसको तो हर महीने ये होता ही है। नाउ शी इज़ ये एक्ट कर रही है, या इफ शी डजंट वांट टू गो आउट, यार Right. ठीक है थोड़ी देर के लिए तो जाना है, यू आर Right. नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू। Right, तो आई right. थिंक बट आई थिंक इंडिया this- में भी आएगा, जैसे अब अब्रॉड में तो आ गया है। पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग ऑफिशियल लीव्स फॉर पीरियड पेन्स, दे हैव स्टार्टेड गिविंग ऑफिशियल लीव फॉर मेनोपॉज। कल्याणी इंडिया में आ चुका था और चला गया। अब्रॉड में तो अब आया अब आया है। देयर वाज अ टाइम जब व्हेन वी वर यंग, हमारे दादी नानी के टाइम पे दे यूज टू गेट 3-4 दिन पूरा फुल छुट्टी मिलती थी किचन से। राइट, मैं हमेशा कहती हूँ ना कोई ऐसी चीज़ है, इट्स ऑल साइंटिफिक, साइंटिफिक, इट्स ऑल साइंटिफिक। जो हम पुरानी चीज़ों को हम वो रूढ़ीवादी बोलते हैं, एक्चुअली दिस इज़ ऑल साइंटिफिक। पहले था, लेकिन हम लोग जब वर्क प्लेस पे फीमेल्स निकल गई कि नाउ वी वांट टू वर्क, तो आई थिंक हम लोगों ने ही उसको कहीं ना कहीं हाँ हैम्पर कर दिया, हैम्पर किया है। इनफैक्ट द सेम थिंग मैं अपने पेशेंट्स को भी वही बोलती हूँ कि जब वो आते हैं ना कि हम 38 पे प्लान कर ले प्रेगनेंसी, हम 30, मैंने कहा देखो हमारे जो बुजुर्ग बोलते थे ना टाइम पे शादी कर लो, टाइम पे बच्चे कर लो, दैट एक्चुअली मेक सेंस नाउ बिकॉज एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं एट ए वेरी अर्ली स्टेज। सो इफ़ वी गो बैक टू आवर एल्डर्स, कहीं ना कहीं पे ये जो भी रिचुअल्स बने थे या ये बने थे, जैसे आई थिंक जो सुबह 5 बजे उठ के खाना खा लेना, शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना। सो व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? इट्स द सेम। सो जो जैन्स फॉलो करते हैं इट इज़ द सेम कि सनसेट के बाद खाना है, सनसेट के पहले खाना है करके, इट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो अल्टीमेटली द साइंस इज ऑल कमिंग बैक टू द रिचुअल्स व्हाट दे स्टार्टेड, एंड दे मस्ट हैव स्टार्टेड विद सम साइंस बिहाइंड इट। बट बस वो है कि प्रूफ अब मिल रहे हैं, दे आर जस्ट गिविंग इट अ न्यू नेम व्हिच वी आर फॉलोइंग नाउ, ओनली बिकॉज दे गेव इट अ न्यू नेम एंड दे हैव केम अप विद दिस। यहाँ से वेस्टर्न जाता है, फिर वेस्टर्न से कुछ और होके आता है, एंड देन वी अडॉप्ट इट। एंड इनफैक्ट हम तो अभी ऐसे हो गए हैं कि द वेस्टर्न हैव टेकन सो मच फ्रॉम अस, जो वो वहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, you know, becoming vegan, becoming stopping all the non-vegetarian, becoming non-alcoholic, praying, doing yoga, और हम जो है हम पूरे उनके अपोजिट जा रहे हैं करके। हमें सब कुछ करना है, हमें भरपूर काम भी करना है, हमें एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, हमें अल्कोहल भी ज़्यादा पीना है, हमें स्मोकिंग भी करनी है, एवरीथिंग टोटल अपोजिट। बट दे आर लर्निंग फ्रॉम अस एंड दे आर गोइंग बैक टू वॉट वी वर ईयर्स बैक। Yes, very true. So, कल्याणी, सिंस यू आर इनटू योर IVF स्पेशलिस्ट एंड आप ये काफ़ी सालों से इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो मुझे एक छोटी सी चीज़ आपसे जाननी थी, व्हाट इज़ IVF एंड इफ़ यू कैन टेल मी मोर अबाउट इट। Okay, so finally topic of my interest. Okay, so IVF is also known as in vitro fertilization. अगर हम हिंदी में बात करें, because we are having this conversation in Hindi as well. जो lay terms जो हम बोलते हैं, it is also known as test tube baby या baby tube. So these are different names. It is all for IVF only. So IVF is basically a type of assistance in your reproduction. So we call it as an ART. कि आपको प्रेग्नेंट होने के लिए हम असिस्ट कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम मशीनरी या ऐसा कुछ वो नहीं कर रहे, वी आर जस्ट हेल्पिंग यू टू गेट प्रेग्नेंट। सो बेसिकली आपके बॉडी के अंदर हर मंथ में एक एग प्रोड्यूस होता है जो रिलीज होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। इट गेट्स पिक्ड अप बाय अ ट्यूब विच इज़ नोन एज फैलोपियन ट्यूब।
और वही टाइम पे इफ़ यू आर सेक्सुअली एक्टिव, अगर स्पर्म पहुँचते हैं तो वो एग एंड स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, आपका एम्ब्रियो बनता है विच कैन कम बैक टू योर यूट्रस एंड देन यू मिस योर पीरियड एंड गेट प्रेग्नेंट, राइट। ये आपका एक नेचुरली प्रेगनेंसी होने का तरीका रहता है। बट ये अगर हो नहीं पा रहा है, इफ योर एग एंड स्पर्म आर नॉट मीटिंग ईच अदर, या मल्टीपल रीजंस की वजह से कि स्पर्म काउंट कम है या एग्स अच्छे नहीं बन रहे हैं या आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है करके, तो यही सेम प्रोसेस जो एग एंड स्पर्म को मिलने का है, व्हेन वी डू इट आउटसाइड आवर बॉडी इन द लैब, इट इज़ नोन एज IVF। सो इट इज़ इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स आपके बॉडी के बाहर हम उसको फर्टिलाइज कर रहे हैं। Okay. So, Kalyani, who should consider IVF and what is the right time to go for it? ओके, सो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, in 2010 they declared that infertility is a disease. It is not कि you know कि it cannot be. So disease का मतलब कोई भी अगर आपको disease है हम उसको treat कर सकते हैं, right? उसके पहले उसको कभी भी infertility को disease segment में नहीं लिया गया था. So when it's a disease, we are accepting कि ये कोई problem है और हम उसको treatment देके ठीक कर सकते हैं. So then they defined कि what infertility is, यानी कि किसको आना चाहिए कि who should start taking the treatment. तो उन्होंने एज को डिफाइन किया. उन्होंने बोला कि फीमेल्स की एज अगर 35 के नीचे है और अगर आपने 1 ईयर तक कोशिश करी है टू गेट प्रेग्नेंट एंड यू आर नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट आफ्टर a year's time of trying, then you are a case of infertility and you need to consult. Okay, then you should consult Yes. probably. And if your age is more than 35, because कहीं ना कहीं पे आपके eggs are getting you know a little less और quality में आपकी problems आ रही है, तो if you have tried for 6 months and if you have not getting pregnant, you are supposed to go and consult back. Okay. So this was a definition given by WHO. उसके बाद देर आर सर्टन पीपल हु हैव गॉट सर्टन प्रॉब्लम्स, जैसे अगर हम फीमेल्स की बात करें तो ओवुलेटरी डिसऑर्डर, जैसे हमने PCOD के लिए बात करी, या फिर जिनके एग्स काफ़ी कम हो जाते हैं जिनमें प्रॉब्लम आते हैं, थायराइड पेशेंट्स होते हैं जिनमें प्रॉब्लम आते हैं. सो इफ द नॉर्मल ट्रीटमेंट हैव नॉट वर्क फॉर देम, प्रॉबेबली दे कुड कम एंड कंसल्ट फॉर एन IVF. Okay. जब आपकी ट्यूब्स यानी जो आपके फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं या जो नसें होते हैं, इफ़ दे आर ब्लॉक्ड, then fertilization can't happen in the tube. So then those will be the patient who can come for IVF or opt for IVF. थर्ड इज़ जहाँ पे आपको पहले आपने ट्रीटमेंट्स लिए हुए हैं, नॉर्मली आपने IUIs किए हुए हैं और वो फेल हो गए हैं, उन केसेस में हम कर सकते हैं. फोर्थ इज़ मेल फैक्टर, बिकॉज बिलीव मी और नॉट, मैंने अभी 3 दिन पहले एक लेक्चर दिया वेयर आई सेड कि यू नो मेल फर्टिलिटी इतनी बढ़ रही है कि WHO हैज़ अज्यूम कि बाई 2030 और 2035 we are going to see decrease in the semen parameters by almost 60-70%. हाँ, so male fertility बहुत बढ़ गई है. Semen parameters, sperm parameters have gone haywire because of the working style, alcohol, इतने jobs, traveling और ये सब चीज़ों की वजह से, pollution की वजह से. So yes, guys with lower sperm count needs to undergo IVF sometimes. And nowadays we have a different set of IVF coming in, जहाँ पे पेशेंट्स को बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, कोई जेनेटिक इश्यूज आ रहे हैं बेबी में. सो उन दोज केसेस में भी हम IVF करते हैं टू चेक ऑन द एम्ब्रियो कि हाउ द एम्ब्रियो इज़ ग्रोइंग. एंड नाउ बिकॉज इतने सारे एडवांसेस आ गए हैं, वी कैन इवन टेस्ट दिस एम्ब्रियो अगर ये एम्ब्रियो में वो जेनेटिक इशू है या नहीं है. सो लेट्स से आपकी फैमिली में किसी को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है एंड वी डोंट वांट कि हमारे बेबी को थैलेसीमिया जाए. सो वी वर्क अप द कपल, हम वो टेस्ट पता करते हैं कि हमें वो एम्ब्रियो पे कौन सा करना है. फिर जो आपका एम्ब्रियो रेडी होता है, वो एम्ब्रियो को टेस्ट करके हम पता करके बता सकते हैं कि एम्ब्रियो में थैलेसीमिया है या नहीं है. और जो हेल्दी एम्ब्रियो है वही हम फिर वाइफ में ट्रांसफ़र करते हैं. तो दैट वे वी आर गिविंग अ जेनेटिकली हेल्दी बेबी. हम मिसकैरेजेस को कम कर रहे हैं उसकी वजह से. So yes, lot of developments have come in, but usually these are the parameters where we ask the patients And to we come can see and that I test. think there are so many celebrities are opting Yes, this now. Yeah. So celebrities, in fact, that's a very good. आपने वो point छू दिया है. So it's about the egg freezing. Egg freezing और oocyte freezing. It's in fact ये मेरा passion project है जो अब मैं next 2 years I think other day we were talking about this. Yes, because now lot of females are not so aware, but yes, thanks to social media अब धीरे धीरे इंदौर में भी लोगों को पता चल रहा है करके. बट मुंबई, दिल्ली मेट्रो साइट्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है. वी आर गेटिंग लॉट ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम देयर जो ऑप्ट कर रहे हैं वॉलंटरीली अपने एग्स को फ्रीज करने के लिए, बिकॉज एज के साथ में आपके एग्स जो है वो कम हो जाते हैं, जेनेटिकली एबनॉर्मल हो जाते हैं. उसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं कि इट इज़ योर बायोलॉजिकल क्लॉक और वो आप उसको रिमाइंड नहीं कर सकते हो. सो एट द एज ऑफ 40 यू डिसाइड नाउ आई वांट टू हैव द चाइल्ड. And if you don't have eggs, you don't have any option to get those eggs back. You have to opt for someone else's egg.
सो उसमें आप अपने जेनेटिक्स कुछ खो देते हो. सो व्हाट नाउ वी आर रिकमेंडिंग विद एडवांस इन द टेक्नोलॉजीज कि इवन एट द एज ऑफ 22, 25, 30, 35 वॉट एवर एज, इफ़ यू हैव इन योर माइंड कि मैं अपना करियर सेटल करूँगी और फिर मैं शादी करूँगी और फिर मैं बेबी करूँगी, देन इट इज़ योर राइट टाइम टू फ्रीज योर एग एंड की, बिकॉज यू डोंट नो आपको कितना टाइम लगेगा आपका करियर सेटल होने में. And there is no particular age. I think So sooner the best, better. yes, Sooner the the best better. age is between 21 to 30. Okay. 30 to 35 is the next best age, and after 35 there is no कि आप नहीं कर सकते हो, because awareness late आई है, तो it is not कि you are late, आप कर सकते हो, but maybe एक के बदले में maybe you need 2 cycles to freeze those eggs करके, but it's never late. It is your insurance policy. आपको नहीं पता आपको ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, but at least आपको पता है कि मैं safe हूँ कहीं ना कहीं पे. So I think that's what Priyanka Chopra came out and said about the same thing कि you know one of the gynec friend had recommended her to do it, and she did it at the age of 32 because she did not know, sorry 26, कि she did not know how much time it is going to take for her career to settle down, and that's how she was blessed now when she wanted to use it. So that how important is to take that right decision. It's just a 15 days treatment that you need to take from your life, that 15 दिन, but it will help you in your future for sure. For sure. कि कहीं ना कहीं पे आप अपने खुद के हेल्दी बेबीज कर पाओगे विद दिस एग फ्रीजिंग. Okay. सो आई डू रिकमेंड एवरीवन गेटिंग टेस्टेड एंड टू टेक अ डिसीजन कि ये आपने करना चाहिए करके. Okay. Since we are talking about IVF, तो मैं आपसे जस्ट जानना चाहूँगी IVF का सक्सेस रेट कितना होता है? ओके, सो जब हम सक्सेस रेट्स की बात करते हैं, देयर आर 2 पार्ट्स टू इट. वन इज़ जो आपका प्रेगनेंसी आना, एंड सेकेंड इज़ योर टेक होम बेबी रेट, यानी कि आप कितने बेबीज, यानी कि हर प्रेगनेंसी जो होगी वो ज़रूरी नहीं है कि आप बेबी घर ले जाओगे करके. इट कैन एंड इन अ मिसकैरेज ऑल्सो, इट कैन एंड इन अ प्रीटर्म लेबर ऑल्सो, बट यूजुअली अगर आप कोई अच्छे सेंटर पे करा रहे हो विद ऑल द गुड टेक्नोलॉजीज विच आर अवेलेबल विद अ गुड सीनियर डॉक्टर, द चांसेस ऑफ यू कंसीविंग थ्रू एन IVF इज अराउंड 60-65% नाउ डेज बिकॉज ऑफ सो मेनी एडवांसेस. पहले इट यूज टू बी वेरी लेस 30-40%, बट अभी एक क्विक प्रोसीजर हो गया है. इट्स एन अल्ट्रा शॉर्ट प्रोटोकॉल, बहुत इंजेक्शंस नहीं लगते हैं, ऑफिस गोइंग भी आराम से कर सकते हैं. इनफैक्ट हमारे वहाँ आते हैं, स्कैन कराते हैं, इंजेक्शन लेके चले जाते हैं. नाउडेज वी हैव पेन्स ऑल्सो अवेलेबल. आप अपने आप को ऑफिस में भी अपने टाइम पे इंजेक्ट कर सकते हो खुद ही विद दैट इंजेक्शन. मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि IVF क्या पेनफुल होता है और व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट राइट व्हेन So it is, it I won't say कि it's a painful, but it is again a person sensitivity. अब taking an injection, वो सुनने में बहुत लगता है कि इंजेक्शन है, but it is hardly a pinch. जैसे हमें सेफ्टी पिन लग गई पल्लू डालते हुए, उतना पिंच होता है. बिकॉज नाउ डेज द इंजेक्शंस विच आर अवेलेबल, दे आर सो रिफाइंड एंड दे आर समथिंग लाइक इंसुलिन इंजेक्शंस. दे आर जस्ट पेन बेस्ड विद स्मॉल नीडल्स, यू कैन जस्ट प्रिक इट बाय योरसेल्फ एंड यू आर ओके करके. सो दे आर वेरी ईजी टू एडमिनिस्टर. जो मेन पार्ट होता है, जो हम एग रिट्रीव करते हैं, दैट इज़ पेनफुल, बट दैट इज़ अगेन नॉट पेनफुल बिकॉज हम आपको अनेस्थीसिया देते हैं, यानी हम आपको सेडेशन देते हैं, तो आपको कुछ फील नहीं होता है. सो रिलेटिवली इट इज़ 99% पेन फ्री. 1% आई एम लीविंग फॉर सर्टन पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाले होते हैं या बहुत सेंसिटिव होते हैं, कि ऐसा थोड़ा सा लग भी गया तो पेन हो गया. दैट इज़ द पार्ट विच कैन बी अ लिटिल पेनफुल. दैट इज इट. सिंस कभी भी कोई IVF के लिए आता है कल्याणी, तो नॉर्मली वो आज भी इंडिया में एज एन सेकेंड ऑप्शन ही कंसिडर किया जाता है. तो वो तब आता है आपके पास जब उसको एक्चुअली नीड होती है. तो उस वक्त वो कपल क्या इमोशनल जर्नी से जाता है, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन इट. सो इट इज़ एक्चुअली एन इमोशनल ये, बिकॉज इन इंडिया पीपल, भले हम कितने भी एजुकेटेड हो गए हैं, माइंड सेट हमारा अभी भी पुराना ही है. सो पीपल हैव येट नॉट एक्सेप्टेड द ट्रीटमेंट ऑफ IVF. अभी भी उनको लगता है कि हमने IVF किया तो हमने कुछ वो कर दिया, हाँ, मतलब they will visit still they'll think कहीं ना कहीं, यानी I have had couples जो who have conceived through me, I must have met them in party, और वो मुझे आके चुपके से, मैम हमने किसी को बताया नहीं हमने IVF किया, प्लीज़ मेंशन मत करना हाँ करके. सो पीपल हु आर एजुकेटेड इनफ ऑल्सो आर नॉट एक्सेप्टिंग कि IVF इज़ नॉर्मल. IVF इज़ नॉर्मल, प्लीज़ अंडरस्टैंड. इट्स जस्ट द असिस्टेंट्स. वो आप ही का बेबी है, वो इट इज़ जस्ट दैट 5 days दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट बेबी टू हेल्प यू कंसीव इन अ फास्टर वे करके. आई अंडरस्टैंड इट्स एन इमोशनल टर्मोइल कि आपको कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि इट्स अ बिग थिंग दैट इज हैपेंड बिकॉज आपकी फैमिली में किसी ने करा नहीं होगा. बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपकी फैमिली ने किसी ने ग्रेजुएशन भी नहीं करी होगी और पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं करी होगी, पर आप कर रहे हो. सेम वे में अगर आपकी फैमिली में किसी का IVF नहीं हुआ है तो नॉट नेसेसरी कि आप नहीं कर सकते हो. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट IVF इज़ अ साइंस.
इट इज़ नॉट अ गिमिक, इट इज़ नॉट समथिंग कि हम आपको बस जड़ी बूटी दे के यानी कि वो ऐसे वो कर रहे हैं. एक्चुअली इट इज़ अ बहुत साइंस. बड़ी लर्निंग है कल्याणी, बिकॉज आई हैव बीन सीइंग बहुत सारी हमारे आसपास ही लोग होते हैं, स्पेशली फीमेल्स, व्हेन दे गेट मैरिड और काफ़ी टाइम तक कंसीव नहीं कर पाती. व्हेन वी आस्क व्हेन आर यू प्लानिंग बेबी, तो उनका एक क्वेश्चन, उनका नॉर्मली क्या स्टेटमेंट आता है, वी आर नॉट प्लानिंग एनी बेबी एंड वी डोंट वांट टू प्लान, या अभी मेरा फोकस कुछ और है, नॉट the baby, but actually the reason is something else. Yes. So they don't want to accept it. Yes. And sometimes husband का problem husband की तरफ से होता है, तो वो भी accept नहीं कर रहे होते हैं कि Correct. problem किधर है. Correct. They never want to accept it. Correct. ये society में अभी भी है. अभी भी है. एंड स्टिल आई डोंट नो, अब तो हमने बहुत सारी चीज़ें समझाई है, वी हैव गॉट द टेक्नोलॉजी नाउ. अभी भी लोगों को लगता है IVF मीन्स के हम किसी और का बेबी अंदर रख रहे हैं करके. आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक दैट वी आर टेकिंग समवन्स एग्स और समवन्स स्पर्म्स. इफ़ यू नीड इट वी विल रेकमेंड यू, बट द प्रायोरिटी इज़ टू गिव यू योर ओन बेबी. एंड अब जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई है टू कीप ए चेक ऑन इट. Nowadays we have is the RI witnessing program. हम आपको एक डिजी कार्ड जैसा देते हैं with a barcode, which for everything you have to go and swipe. तो वो आप ही का नाम डिस्प्ले होगा. So when you are giving a semen sample, वो आप ही का है, आपके eggs है, आपके embryos है. So everywhere there is a double check in the system happening with your identification and everything करके. So अब तो IVF has become too easy and it has become too ethical. In fact क्योंकि इतने सारे अब सेंटर्स खुल गए और इतनी सारी नीड आ गई है, अब तो गवर्नमेंट भी जो है हैज़ बिकम वेरी थरो इन देयर लॉज एंड एवरीथिंग. तो कोई भी आपके साथ ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सकता है. वी आर ऑल liable to lot of laws and jurisdiction in this area. And in fact we call IVF as a zero tolerance policy. It is like an airport. Airport पे एक साथ में 2 प्लेन नहीं लैंड हो सकते हैं, नहीं तो वो क्रैश हो जाएगा. सेम वे में you can't mix up anything in the lab. It's a zero tolerance policy and this is all guided by the law. So it is very safe, trust me. And वो जो आप 15 साल स्ट्रगल कर रहे हो ना, नॉर्मल करते हुए, इतने सारे लोगों का प्रेशर लेते हुए, सोशल ये वो करके, इन दैट 15 days यू विल हैव दैट गुड न्यूज़. एंड आपको ऐसा फील होगा कि कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया. वी हैव हैड पेशेंट्स कमिंग बैक क्राइंग विथ अस कि मैम हमें ये पहले पता होता, आज से 10 साल पहले हमने ये कर लिया होता, हमने इतना टाइम वेस्ट नहीं किया होता. एंड आई थिंक देयर आर सो मेनी कपल्स जो सेकेंड बेबी प्लान ही नहीं कर पाते, एक्चुअली कर नहीं पाते, इसलिए वो आगे कभी सोचते ही नहीं उसके लिए, और फिर आफ्टर years and years they regret कि we should have opted for IVF rather. इनफैक्ट सेकेंड बेबी के लिए भी मैं पेशेंट्स को वही बोलती हूँ, अगर आप करेक्ट टाइम पे अपना IVF करोगे, अगर आपके ज़्यादा एम्ब्रियोज बन जाते हैं, यू कंसीव द फर्स्ट टाइम, जो भी आपका सरप्लस या एक्स्ट्रा है, वी कैन फ्रीज एंड कीप इट फॉर यू फॉर योर सेकेंड बेबी. यू कैन कम बैक एंड यूज इट. सो द लॉ allows us to store their embryos for the next 10 years. Okay. If they say कि हमें नहीं आगे बढ़ाना है, then we have to take a official consent from them and we have to discard it. Okay. So we can store it for them जब तक उनको चाहिए. They can come back again after 4 years. और जो आज हमने freeze किए हैं, they can just take the transfer, have the second baby तभी के तभी. So it is so easy and it is so fruitful. Everyone just think about the finance, but हर चीज़ में to get that positive result, you need to have the quality work and that will cost you at some point. So yes, it may be a little expensive for you, but I never call it as expensive. वो आपका बेबी है, आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हो. आज आप जो काम कर रहे हो, you are working for your family, for your kids only. तो अगर वो आपको बच्चा आने से पहले अगर स्पेंड करना पड़ रहा है, there is no harm in it. Very true. So I think it is just your mentality. People need to talk about it, and I would actually request all your viewers, in case if they have undergone the IVF, to share with your people out there. बिकॉज मे बी आपने एक को बोला ना, उसको नहीं पता होगा, इट विल हेल्प हर. थिंक इट हैज़ अ चैरिटी कि थिंक इट हैज़ अ सोशल कॉज कि आप ये अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हो करके कि IVF इज़ नॉट अ सोशल टैबू एनी मोर. इट कैन बी ट्रीटेड एंड इट इज़ सच अ फैंटास्टिक ट्रीटमेंट के पेशेंट्स कैन हैव pregnancies. I think all the females and all the couples should come forward and they should set an example that yes, we have IVF baby. Yes. जैसे हम कैंसर को प्रमोट कर रहे हैं, वी आर हैविंग सो मेनी पीपल हु हैव अंडरगॉन ब्रेस्ट कैंसर, दे आर कमिंग आउट स्पीकिंग अबाउट इट. तो हमें पता है कि हमें ये सारी चीज़ें टेस्ट करनी है. नहीं तो आज से थोड़े साल पहले कौन आता था, पूछता था कि पैप्समियर करूँ क्या, मैमोग्राफी करूँ क्या. बट बिकॉज वी ऑल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, नाउ पीपल आर कमिंग, गेटिंग देमसेल्फ चेक्ड करके. So I think IVF should also be one of that. Fertility causes should also be something like a social awareness, जहाँ हमने एक दूसरे से बात करनी चाहिए. मे बी एंड इनफैक्ट बात इसलिए भी करनी चाहिए, हो सकता है आज मुझे प्रॉब्लम हो पर मुझे नहीं कंफर्टेबल हो रहा है कि मैं किसी से साथ डिस्कस करूँ. एंड मे बी वन फाइन डे यू जस्ट आस्क मी कि कल्याणी क्या चल रहा है करके, एंड आई मे जस्ट ओपन अप टू यू. इमेजिन दैट इमोशनल
थॉट दैट आई हैव गिवन इट आउट टू यू, मैंने अपने आप से कितनी सारी चीज़ें वो रिलीज कर दी करके. सो यू आर गिविंग दैट मेंटल सपोर्ट ऑल्सो टू समवन. And I think there are so many there looking out for that. I feel there's so many females. सो मेनी फीमेल्स, बिकॉज आज भी जो हम सोसाइटी में रहते हैं, यू आर ऑलवेज जज्ड कि आपके पास कितने बेबी है, यानी कि हाँ. आपकी शादी कब हुई, कितने साल में बच्चा हुआ, आपको लड़का है, आपको लड़की है. आई डोंट नो व्हाई एक ही है, दो ही है, अरे 4 हैं. so we all still get judged, right? Instead of getting judged, It should I not think be. It we should should not work be on like it. that. But yes, if you want to become mother or if you want to become parent, you should take that step. take. Yes. अच्छा, सिंस IVF की बात हो रही है कल्याणी, तो आई जस्ट वुड लाइक टू नो इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है या कोई. So anything very if you go पहले for हुआ such करती थी, treatment? we used to call it something as hyperstimulation syndrome. जब आपके बहुत सारे eggs बन जाते थे, तो there used to be a lot of hormonal changes in your body and बहुत fluid भर जाता था, weight gain हो जाता था. So that is something which we were afraid as a clinician कि hyperstimulation हो रहा है, फिर हमें patient को admit करना पड़ता था. But last 6-7 years से this hyperstimulation has gone out. We now ourselves declare कि हम OHSS free clinic है. That means it's a very safe treatment. जहाँ पे if we feel your body is not ready for the embryos to be doing the transfer at that month, हम आपकी body को पहले relax होने के लिए, safety zone में जाने के लिए time देते हैं, and then we do it. So usually it is very risk free. Of course, any medical procedure will have that 1 or 2% of chances of having something going wrong करके, जैसे anesthesia में कुछ होना. But usually in my span of 17 years of career, I haven't seen any problems happening with any of the patients. So I feel it's very relatively safe, something like a dental treatment. कल्याणी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट women and working women as well, so अगर हम working women की बात करें तो उनकी लाइफस्टाइल जिस तरह की होती है, वो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ख्याल कैसे रखें? So working females के लिए I actually sympathize with them because उनको इतना मल्टीटास्क करना होता है, उनको घर भी मैनेज करना होता है, बिकॉज सी everyone is not blessed with maids and everything out there. बहुत सारे लोग जो है वो घर में वो जमा पूंजी लाने के लिए they are working करके, so they have to get up, they have to go to their job, they have to make खाना also, they have to make lunch also, they have to take care of their in-laws also, they have to come back also on time, फिर सारी चीज़ें भी करनी होती है, सेविंग भी करना होता है. So too much of activities going on in their life. So all I can say is कि try to be a little stress free, because आप जितना स्ट्रेस कम रखोगे आपकी बॉडी उतना अच्छे से बिहेव करेगी. एंड आई अंडरस्टैंड कि आपका डे इज़ वेरी बिजी, बट प्लीज़ फाइंड दैट 1 hour ऑफ टाइम फॉर योर सेल्फ. उसके अंदर आप रनिंग करो, आप जॉगिंग करो, आप मेडिटेट करो, आप कुछ भी करो, पर वो 1 घंटा आपको अपने लिए निकालना है टू हैव दैट पीस ऑफ माइंड वेर एवर यू फील इट कैन हेल्प यू करके. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड ऑफकोर्स हैविंग healthy khana for yourself that includes your green leafy vegetables, lemon, good natural source of fruits, या जो seasonal vegetable हम actually बोलते हैं rainbow खाना खाना चाहिए. So whichever is more colorful is full of antioxidants and that is the food that you need to eat. And आपका weight आपको control में रखना है. And people who are in the office work and if you have to attend a lot of parties and all, try to avoid alcohol and smoking because those substances are not good. Those are chemicals which can impair the growth of your eggs and your baby. So you need to, whenever you are planning your pregnancy in those type, lifestyle modification is the first and the foremost thing. If you are a little on the overweight, you need to start reducing your weight. एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपको एक्सरसाइज करनी है. अगर आप ड्रिंक्स और ये सब कर रहे हो, आपको ये सब चीज़ें छोड़नी है करके. एंड यू नीड टू फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ. Since we have talked about the working women, now let's talk about the homemakers. So housewives अपने घर के काम को बैलेंस करते हुए कैसे अपने हेल्थ का ध्यान रखें? So I think because यहाँ पता है क्वेश्चन क्या आता है, कल्याणी कहते हैं आप घर में ही तो रहते हो, you can take care of yourself. I think but they never do it. Housewife are the most busiest people I have seen rather than we, because आपके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. हम तो कैसे है, काम पे चले गए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करके चले गए करके, so there's nothing that is coming back to us. But people who stay at home, I think they have to manage everything. They have to manage their in-laws, they have to manage their kids, they have to manage their husband, they have to manage घर की सारी चीज़ें, सारा सामान आया कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं. So I think homemakers are the ones who are actually working more than what we are working. It's an unpaid job of course, but they are actually working. ऐसा नहीं है कि वो बस बिस्तर पे सो रहे और टीवी देख रहे हैं करके. So for them the best would be, again the best would be कि अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. In fact
इफ़ वी ऑल मस्ट हैव रियलाइज इन कोविड, जब हमारे घर मेड्स नहीं आ रही थी, जब हम ही खुद झाड़ू मार रहे थे, खुद पोछा मार रहे थे, आई थिंक हम सब ने वेट लॉस कर लिया था हमारा, है ना. एंड वी ऑल वर वेरी हैप्पी इन कोविड बिकॉज वी वर एक्सरसाइजिंग बाय डूइंग ऑल दिस थिंग. हम बर्तन भी मांज रहे थे, हम खाना भी बना रहे थे, हम ये सब कर रहे थे. सो इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू डोंट फाइंड टाइम फॉर योर वर्कआउट, मे बी यू कैन जस्ट डू घर का काम विच में हेल्प यू फॉर योर weight or for your exercise. Keep yourself very hydrated. Every 2 to 3 hours, keep on drinking water. Water is very essential. Have good salad before your main meal. This will be 3-4 things that you, and again, like I said, vitamin D very important. अगर आप नहीं जा पा रहे हो in the sunlight and you are always in the AC or you are always at home करके, then you should take some vitamin D supplements and start taking some calciums. Okay. And of course, having good sleep is again important. So either you can have some power nap in the afternoon or या तो फिर रात को आप अपने 7 to 8 hours निकाल Power सकते nap हो. is important. Power nap is important. Anytime. Your brain need to relax. ओके ओके. एंड इवन इफ़ यू टॉक अबाउट हाउसवाइफ्स, मैंने देखा है कल्याणी मोस्टली ना वो अपने आप को बहुत इग्नोर करती हैं. बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप हस्बैंड को कुछ दे रही हो या बच्चे को कुछ दे रही हो तो खुद के लिए भी एक पोर्शन रखो. Exactly. वेदर इट्स फ्रूट्स, वेदर इट्स Very यू नो true. मॉर्निंग स्नैक्स और Yes. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, करना ही दे चाहिए. नॉर्मली हम बाद में खाएंगे. तो मुझे नहीं, लगता है ये करना ही चाहिए. दैट इज़ वेरी एंड इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट अगर जैसे संडेज है या व्हेनेवर यू हैव टाइम, ट्राई कि आप सब एज अ फैमिली साथ में ही मील करें. ज़रूरी नहीं है कि आपको ही रोटी बना के लाके देनी है करके. अब आजकल बहुत अच्छे कैसरोल्स आ गए, अब खाना गर्म रख सकते हो, बना के रख लो, सब साथ में खाओ. दैट इज़ ऑल्सो ए मोमेंट टू बी चेरिश्ड. एंड आई थिंक जब आप सब साथ में रहते हो, इट गिव्स यू दैट हैप्पीनेस ऑफ बीइंग टुगेदर एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो आप हफ्ते में 2 या 3 दिन तो अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा ही सकते हो. इट इज़ नॉट एट ऑल, कहीं पे भी नहीं लिखा है, ना वेदास में लिखा है, ना कहीं साइंस में लिखा है कि हम गर्म रोटी बना के खाएंगे तो ही हमारी हेल्थ अच्छी होगी करके. सो इवन जो खाना हमारे पास है वो हम कैसरोल में रख के, मे बी हम फ्रेश ही खाएं, बट वो बना के हम रख सकते हैं. सो दैट, एंड इनफैक्ट आई विल एनकरेज द पीपल एट होम ऑल्सो टू रिस्पेक्ट योर मॉम और रिस्पेक्ट योर वाइफ, कि उनको बोलो कि नहीं तुम भी बना के आ जाओ, सब साथ में बैठ के साथ में खाते हैं. खाएंगे. इट इज़ जस्ट वो 1-2 टाइम लगेगा, बट आप उनको encourage करोगे, they'll feel more happy to come and sit with you करके. Kalyani, what is that one golden piece of advice you would like to give to all the females, all the mothers? सो फर्स्ट इज, आई थिंक पूरे पॉडकास्ट में हमने जो बोला है, द मोस्ट गोल्डन रूल इज टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ. डोंट इग्नोर योर सेल्फ. लुक एट योर सेल्फ. आप हर रोज़ अपने आप को अगर मिरर में देखोगे एंड इफ़ यू फील कि यू आर डूइंग गुड, talk to yourself, give that affirmation that everything happening in your life is very good and you are thankful to God that whatever you have got is very good. Do not compare yourself with the next person. Comparison will always lead, आपको हमेशा कहीं ना कहीं पे वो दुख देगा. प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ. आप जैसे हो वैसे अच्छे हो. अगर आप 80 kgs के भी हो आप अच्छे हो, आप 40 kgs के हो फिर भी अच्छे हो, बट आपकी हेल्थ अच्छी रहना इज़ योर प्रायर कंसर्न. जैसे हम बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम. अगर मदर या वाइफ की हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी फैमिली अच्छी रहेगी. सो डोंट इग्नोर योर हेल्थ. अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विथ यू, यू आर फीलिंग टायर्ड, यू आर फीलिंग आपका वेट बढ़ रहा है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, आपको लग रहा है पैर दुख रहे हैं या यू नो कॉन्स्टेंटली आपको कुछ एक हो रहा है, you should go to your gynec or you should go to your physician and get yourself checked. And for every female out there, I would really advise you, please, हर किसी के घर के पास एक गायनोकोलॉजिस्ट है. ऑलवेज गो टू ए गायनोकोलॉजिस्ट टू गेट योर सेल्फ चेक्ड. दे विल बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, वेदर यू नीड कैल्शियम, वेदर यू नीड आयरन, वेदर यू नीड एन अल्ट्रासोनोग्राफी. बट येस, वंस इन अ ईयर आपका चेक करना ज़रूरी है करके. एंड फॉर मदर्स हु हैव जस्ट डिलीवर्ड, please, I understand that you need to breastfeed your baby and that is the reason you need to have healthy foods, but together, like Komal mentioned कि 4-5 months के बाद even she started exercising. So there are no barriers कि you know कि हम 1 साल के बाद ही exercise करेंगे. हम जो भी weight gain करते हैं post delivery ही करते हैं. So don't ignore yourself at that time. Once you know, once your doctor gives you the clearance that yes you can start doing the exercise, you should start doing the exercise. और ऐसा नहीं है कि जिम ही जाना है, आप घर पे, अब तो यूट्यूब में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है. जस्ट पुट दैट यूट्यूब एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज व्हेन योर बेबी स्लीपिंग और डूइंग समथिंग करके. सो दैट्स माय गोल्डन एडवाइस टू एवरीवन. जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. Kalyani, you said it very beautifully that women's health is just not luxury but it's a necessity. Yes. तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए बिकॉज जैसे मैंने कहा विमेन हमेशा इसको सेकेंडरी रखती है. और अपनी रेगुलर डाइट का ख्याल रखें, अपने एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें एंड डोंट मेक इट सेकेंडरी ऑप्शन बट योर
health is your priority. प्राइमरी, इट शुड बी योर Yeah. प्राइमरी. Yes, आप it should खुश be your रहोगे, priority. आप ठीक रहोगे तो आपके बच्चे, आपके Very फैमिली true. सब खुश रहेंगे. Yes. कल्याणी, बहुत अच्छा लगा आपसे इतने सारे इंसाइट्स जानने को, और मुझे लगता है IVF इज़ जस्ट नॉट अ शॉर्टकट बट अ रे ऑफ होप. Yes. एंड आई थिंक आप बहुत सारी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेके आ रही हैं. आई थिंक हमारे लिए बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा, और हम बहुत टाइम से पॉडकास्ट प्लान कर रहे थे, एंड आई एम ग्लैड we could make We it could this make time. it, yes. Thank you so Yes. much. Thank you so much, Komal. It was such a pleasure to be here and discussing so many aspects of women's life. And we just had the Women's Day, 8th of March. And I wish हम उसके पहले कर पाते, but I'm so sorry हम नहीं कर पाए करके. I will keep But calling you now. Yes. So yeah, thank you so much, and thank you to all the viewers who are out there. And please keep encouraging and subscribing Komal, so that she can come up with new speakers every time when Thank we are you. here, and Thank keep you. on passing so many beautiful messages out to you. Thank you so much. Thanks.